shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade. Of class 3rd, welcome to your English class. So children, today we are going to discuss the exercises of chapter number 1, that is I don't have a flower. Chapter number 1 of roots and wings, that is I don't have a flower. This is your part 2. In part 1 I have explained the story. You can check it from there. पार्ट 1 में मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की है, समझाया है, आप चेक कर सकते हो. एंड दिस विल बी योर पार्ट 2 जहाँ मैं एक्सरसाइजेस डिस्कस करूँगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस. कम रीड एंड अंडरस्टैंड. इन क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. एट फर्स्ट मैं सारे आंसर्स पहले ओरली बोल दूँगी, देन आई विल शो यू इट इन द रिटन फॉर्म ऑल्सो. ओके, सो दैट अगर आपको लिखना है देन यू कैन पाउज द वीडियो. आप वीडियो पाउज कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. Fine. Okay. Question number 1. Who was growing old? Then your answer will be the Chinese emperor was growing old. The Chinese emperor was growing old. Okay. Question number 2. Where did Chang sow the seed? जो Chang था उसने seed को कहाँ बोया था? Then your answer will be Chang sowed the seed in a silver pot. Your answer will be Chang sowed the seed in a silver pot. Now in question number 3, what did Chang's friend tell him? Then your answer will be Chang's seed did not flower, so his friend tell him to take a flowering plant from elsewhere. Okay, so his friend tell him to take a flowering plant from elsewhere. Fine. Now come to question number 4. Who was chosen as the next king? जो चाइनीज़ एम्परर था उसने अपने बाद किसे चूज़ किया था किंग के लिए? देन चैंग को ना. सो देन योर आंसर विल बी चैंग वॉज चोजन एज द नेक्स्ट किंग. फाइन. Now move to the question number B. Tick the correct answers. Question number 1. What were distributed at the emperor's castle? क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था एम्पायर के कैसल में, महल में? देन सीड्स ना. ऑप्शन नंबर ए गोल्ड कॉइन्स, नो. सीड्स, येस. सो यू विल टिक इट हियर. फ्रूट्स, नो. डी डायमंड्स, नो. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. चैंग लव्ड ग्रोइंग. What did Chang love to grow? Then flowers, right? Then option number A, it is given flowers, so you will tick it here. Vegetables, no. Herbs, no. Mushrooms, no. Never. Okay, now move to the question number 3 of B. The emperor was happy with Chang because he was what? Dishonest? No. A liar? No. Honest? Yes. So your answer will be C, option number C. Fine. Now move to the question number C. Write true or false. The Chinese emperor ruled his country fairly and wisely. Yes, he ruled his country very fairly and wisely. Isn't it? Yes, then it will be true. You can write T also, or you can write TRUE. Okay. आप completely भी लिख सकते हो ना. You can write T also. Come to the next one. An idea occurred to the emperor when he was sleeping. No, an idea occurred to the emperor when he was in his beautiful garden, when he was walking in the beautiful garden. So it will be false. Okay, this is your F. 3rd, Chang was sure that his flower would be the most beautiful. Yes, he was sure about that. So it will be true. Okay, wait, this is true, this is false, and this is true. ओके, डन. वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो. अगर प्रॉब्लम हो रही है देन यू कैन पॉज द वीडियो. ओके, एंड देन आप अपनी जो भी बुक है आप उस पर लिख सकते हो नोटबुक पर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4th, द एम्पायर एडमायर्ड चैंग्स फ्लावर. डिड द एम्पायर एडमायर? नो, बिकॉज चैंग वॉज नॉट हैविंग एनी फ्लावर ना. चैंग के पास तो फ्लावर था ही नहीं, तो फिर जो एम्पायर है वो कैसे एडमायर कर सकता है, कैसे प्रशंसा या प्रेज कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है. सो इट विल बी फॉल्स. 5th one,
इट इज़ ऑल राइट टू बी डिसऑनेस्ट इफ़ नो वन फाइंड्स आउट द ट्रूथ। क्या ये सही है डिसऑनेस्ट होना, बेईमान होना? अगर कोई आपकी सच्चाई को पकड़ नहीं पा रहा हो, आपकी झूठ को नहीं पकड़ पा रहा हो, आपकी सच को फाइंड नहीं कर पा रहा, पता नहीं कर पा रहा, तो क्या सच है क्या आप डिसऑनेस्ट बनकर निकल जाओ? ये सही है? नो, इट्स रॉन्ग ना, सो इट विल बी false. Okay, now come to the fill in the blanks. Question number D, fill in the blanks with suitable words. See children, blanks are given and you have to write the suitable words. Okay, the appropriate word. First one, there once lived a great Chinese emperor. Who was there? That was emperor, so your answer will be emperor, EMPEROR. Okay, in question number 2, one evening the emperor was walking in his beautiful what? Garden. वो अपने गार्डन में टहल रहा था ना emperor, so here it will be garden. Okay, now in the third one, strangely the seed did not what? जो seed था वो क्या नहीं करता है? Did not flower, so your answer will be FLOWER, flower. Now in the fourth one, you are the only one who has been what? Honest or dishonest? Who has been honest? Chang was the only person who was honest there, है ना, among all the people. So here it will be honest, HONEST. Okay, wait. Just wait for a minute. Yeah, here it will be. Let me write the last one. बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो what I wrote there. Okay, and the last one it will be honest. Now move to the question number E. Answer the following questions. Let me show you the answers. Now see, question number 1 of E. Answer the following questions. Question number 1, why was the emperor worried? जो emperor था, Chinese emperor था, वो क्यों worried था, क्यों चिंतित था? Okay, then your answer will be, the emperor was worried because he was afraid that he wouldn't find a good successor. Okay, this is question number 1. Now moving to question number 2. Now question number 2, why was Chang sad? जो चैंग था वो सैड क्यों था? Then your answer will be, Chang was sad because his seed did not flower. Okay, क्यों वो सैड था? क्योंकि जो उसकी सीड थी वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई थी, that's why he was sad. Okay, question number 3, how did Chang's father encourage him? Your answer will be, Chang's father encouraged him by saying that he had tried his best and should show the pot to the king. चैंग के फादर ने उसको कैसे इनकरेज किया था? ये कहकर किया था कि तुमने अपनी जो भी कोशिश की है, तुमने अपना बेस्ट दिया है, अब जाओ जाकर ये पॉट को जाकर किंग को दिखा दो और जो भी सच है, जो भी ट्रूथ है वो उसे बता दो. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड चैंग टेल द एम्पायर? चैंग ने एम्पायर को क्या बताया, क्या कहा उसने जाकर? देन योर आंसर विल बी, चैंग टोल्ड द एम्पायर द ट्रूथ. उसने सच बता दिया जो उसके साथ हुआ था कि जो सीड है वो फ्लावर नहीं बन पाई, है ना. ही टोल्ड द एम्पायर दैट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स द सीड डिड नॉट ग्रो इनटू अ फ्लावर. उसने बताया कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी जो मेरी सीड है वो क्या हुई, ग्रो नहीं कर पाई और वह फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाई, है ना, प्लांट ही नहीं उससे हुआ. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक Chang was the right choice to be the next king? Why? क्या आपको लगता है कि जो चैंग को नेक्स्ट किंग बनाया गया था, इट वॉज द करेक्ट डिसीजन टेकन बाय द चाइनीज एम्पायर? क्या ये सही डिसीजन था, राइट चॉइस था? देन येस, बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बॉय. ही वॉज द ओनली वन हु वॉज ऑनेस्ट ना, सो इट वॉज द राइट चॉइस. ओके, नाउ देयर इज अ थिंक एंड आंसर. ठीक है, ये आपको खुद से करना, बट लेट मी गिव यू द हिंट. ये रहा आपका थिंक एंड आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन देयर? व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट? आपको थिंक मीन्स व्हाट,
आपको सोचना है एंड देन यू हैव टू आंसर इट. ओके, एट फर्स्ट जस्ट थिंक इट एंड देन गिव द आंसर. आपको यहाँ ये बतानी है दैट कोई भी सीड को ग्रो करने के लिए एक प्लांट में उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए होती है. जैसे कि अगर आपको फूड कुक करना है, खाना बनाना है, कुक करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए. सपोज करो आपको वेजिटेबल्स बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको. पैन चाहिए, ऑयल चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए ना. तो ये सारे क्या है, उसके लिए आपको इसमें हीट देना है तो आपको गैस स्टोव चाहिए. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. उसी तरह अगर सीड को प्लांट में कन्वर्ट करना है, ग्रो करना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी. देन सी द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट आर प्रॉपर टेम्परेचर, सॉइल एंड सनलाइट. ये जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन रिक्वायरमेंट्स है. उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए. बिना मिट्टी के क्या होगी प्लांट, नहीं. टेम्परेचर, आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है तो क्या होता है, जो प्लांट है वो सूख जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे. तो प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. सनलाइट होनी चाहिए. अगर धूप नहीं निकलेगी तो वो क्या होते हैं, प्लांट वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, है ना. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर. Now move to the next one. Now see, after that there is grammar spotlight. Okay, the topic is sentences. At first you should know what is sentence. Then the definition of sentence is a group of words which gives a complete sense or meaning is called sentence. Sentence क्या होता है, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं. हाँ, लेकिन उनसे एक मीनिंग निकलनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फरहत मैम इज़ टीचिंग. देन देयर आर सो मेनी वर्ड्स, है ना. फरहत, मैम, इज़, टीचिंग, देयर आर 4 वर्ड्स. तो आपने क्या किया, इन वर्ड्स का ग्रुप बना दिया और उसके बाद आपने इसे अरेंज कर दिया. ओके, एंड देन इससे क्या एक मीनिंग निकल रहा है, एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है. बट अगर आप वही बोलते हो इज़ मैम टीचिंग फरहत, तो क्या वर्ड्स सारे वही है बट यहाँ क्या हुई है, यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं वर्ड्स की. तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट आपको मीनिंग नहीं दे रहे, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, एक प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रही है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही नहीं सिर्फ सेंटेंस होता, उनसे क्या होनी चाहिए, एक मीनिंग निकलनी चाहिए. दोज वर्ड्स शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर ऑर्डर. ओके, तो सेंटेंस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से एक वीडियो में आपको सेंटेंस मैंने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. आप देखोगे तो आपको कभी भी नहीं भूल पाओगे. एक और नेक्स्ट वीडियो उसमें मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया है. ओके, मैं दोनों का लिंक शेयर कर दूँगी, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. फाइन. सो नाउ मूव. सी क्वेश्चन नंबर ए, इट इज़ गिवन. और हाँ, जो सेंटेंसेस होते हैं उनके काइंड्स होते हैं. तो आपको यहाँ भी क्या करना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ना और क्वेश्चंस मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो एक सिंपल सेंटेंस हुई उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन राइज किया जा रहा है, तो दैट विल बी योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यू कैन से क्वेश्चंस. और हाँ, आप उसे पहचान कैसे सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता है. अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो दैट विल बी योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. सो ये आपकी एक ट्रिक है पहचानने के लिए. सी क्वेश्चन नंबर ए, राइट D for declarative and I for interrogative sentences given below. See the first one, what did the king give to the people? There is a question mark. तो क्वेश्चन मार्क देखकर ही आपको समझ आ गया होगा दैट विल बी योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट. और यहाँ व्हाट लगा है तो ऑब्वियसली दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो इट विल बी आई. लेट मी राइट. First one will be I. In the second one, does Chang like flowers? Again there is a question mark. Then again it is your interrogative sentence. Wait. Okay. Third one, an honest person is always respected. There is full stop. It means this is your declarative sentence because this is a simple sentence and after this sentence there is full stop, so it will be declarative. So here it will be D. This is your D. Okay. Now fourth one, when will you visit your uncle? Again there is a question mark, so it is your interrogative sentence. Then fourth will be your interrogative sentence. Fifth, the king loved Chang, and then full stop.
देन इट इज़ योर डिक्लेरेटिव, फुल स्टॉप है तो डिक्लेरेटिव हो गया। 6th में Japan is a beautiful country, then full stop. This is simple sentence and after this sentence there is a full stop also, so it is your declarative, so D लिखोगे आप। Have you seen a castle? Have you seen a castle? Then full question mark, sorry not full stop, question mark, so this is your interrogative sentence, okay, then here it will be interrogative, okay। so, यहाँ स्पेस नहीं हो पा रहा बेटा इसलिए मैंने यहाँ लिखा है I, this is your I, okay। सो डन। पॉज करके आप देख सकते हो फिर से, अगर आपको मान लो मैं अगर मूव करूँगी ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो आप जाकर वीडियो को थोड़ा पीछे कर सकते हो आप, उसके बाद आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, ओके। दिस इज योर आई, ओके, लास्ट वन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी, अब देखो इंट्रोगेटिव तो आप जान गए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जान गए हो आप, और इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एडवाइस और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ हल्का फुल्का, बिकॉज फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, डीपली किया है, आप वहाँ से देख लो, ओके। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में क्या किया जाए, कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, वैसे सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। सी आपको यहाँ बताना है जो डिक्लेरेटिव होगा दैट विल बी, आपको वहाँ डी लिखना है, इंट्रोगेटिव के आगे आई एंड इम्पेरेटिव के आगे आई एम लिखना है, ओके। क्लोज द विंडोज नाउ, देखो दिस इज योर ऑर्डर, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस क्या होता है, दैट इज योर इम्पेरेटिव। देन इन द फर्स्ट वन यू विल राइट आई एम, क्या लिखोगे आप, आई एम, ओके। इन द क्वेश्चन नंबर 2, चैंग वॉज चोजन बाय द एम्पायर, देन फुल स्टॉप, दिस इज सिंपल सेंटेंस, सो इट विल बी डी, ओके। अब आप देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप होता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप होता है, बट फ़र्क ये है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस होगी, उसमें ना ऑर्डर होगा ना रिक्वेस्ट होगा, नथिंग विल बी देयर, दैट विल बी सिंपल सेंटेंस। बट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें ऑर्डर होंगे, सजेशंस होंगे, एडवाइस होंगे, ब्लेसिंग्स होगी, ये सारे उसमें रिक्वेस्ट होते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। I am proud to be an Indian, again this is simple sentence, so it will be D. Fourth one, who is waiting at the gate, here is the question mark, so it will be your interrogative, so it will be only I, okay। interrogative के लिए only I and imperative के लिए I am आपको use करनी है। Now move to the fifth one, please give me your sharpener, this is a request, so it will be imperative sentence। यहाँ आप request कर रहे हो ना, please give me, please लगा है, तो दिस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। 6th वन, इज द मैच ओवर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इट विल बी योर इंट्रोगेटिव, तो आप आई लिख दोगे। बी 7th में आप आ जाओ, बी केयरफुल वाइल गोइंग डाउन द स्टेयर्स, बी केयरफुल, यहाँ आपको सजेशन दी जा रही है ना, आपको एडवाइस दी जा रही है कि जब भी आप सीढ़ियों से नीचे जाओ तो आप केयरफुल रहा करो, अदरवाइज यू कैन फॉल डाउन, तो दिस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एडवाइस है ना, तो इट इज़ योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। 8 में आ जाओ आप, हाउ इज़ योर फैमिली, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, सो इट विल बी योर व्हाट, दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो यू विल राइट हियर आई, जस्ट वेट, it will be I, okay। now in the 9th one, go to your room and study, this is your what, this is your order, go to your room and study, then it will be your imperative sentence। where do you live, question is there ना, question mark लगा है, question पूछा जा रहा है कहाँ तुम रहते हो, then it will be your interrogative, so you here it will be I, done। now move to the next one, spell well, okay। see आपको यहाँ फिलअप्स की तरह दिए गए, आपको फिल करना है, वर्ड्स बनानी है, फाइन। सी द क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, यू मे यूज द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। देखो आपको क्या करना है, हेल्प बॉक्स में यहाँ दिए गए वर्ड्स कौन कौन से सक्सेसर हैं, ब्यूटीफुल है, अमेजमेंट है, एम्पायर है, दिस इज योर हेल्प बॉक्स, ये आपका हेल्प बॉक्स है, ओके। आपको यहाँ हेल्प लेकर इस
फिलअप को फिल करनी है, यहाँ जो मिसिंग लेटर है वहाँ फिल करनी है। फर्स्ट वन में क्या हो जाएगा आपका एम्पायर बन रहा है ये, है ना, तो यहाँ ई एम हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, दिस इज योर ओ, तो एम्पायर बन जाएगा। सेकंड में सक्सेसर, तो यहाँ यू फिल करोगे आप, यहाँ ई फिल करोगे आप, यहाँ ओ, यहाँ आर, सक्सेसर बन जाएगा। थर्ड वन में क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, तो यहाँ बी, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। ओके, एंड इन द फोर्थ वन here you will write M, amazement बनेगा। ओके, and then here Z, here E M, sorry, then E, then here it will be T, this is your T. Okay, done, got it? Okay, if you are having problem then just pause the video and then just write it and take your time. Okay, now move to the next one. Word power, find 10 words connected with the honesty in this word grid. इट मीन्स ऑनेस्टी का आपको सिनोनिम्स बोल सकते हो आप, ठीक है, आपको वो बताना है। ऑनेस्टी के लिए आप कौन सा और भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, इस ग्रिड में आपको ढूंढना है। ओके, तो देखो आप, ओ जस्ट वेट, लेट मी, देखो लॉयल्टी, दिस वन इज योर लॉयल्टी, तो आप ये एक वर्ड ले सकते हो। ओके, आपको ये खुद से करना होगा, मुझे आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए, आप खुद से करोगे इट विल बी बेटर। ऐसे मैं बता ही देती थोड़ा बहुत। फ्रैंकनेस हो गया यहाँ। ओके, आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं। फाइन, तो इस तरह से आप इसे बना लोगे। फेयरनेस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कितने वर्ड्स मिल रहे हैं, जस्टिस मिल गया, ये सारे क्या हो रहे हैं, सिनोनिम्स हो रहे हैं। सिंसियरिटी हो गया हमारा। अब आप काउंट करो कितने वर्ड्स हमने किया है। राइट हो गया, ऑनेस्ट मीन्स जो राइट होता है दैट विल बी योर ऑनेस्ट, इजंट इट। ये हो गए हमारे, और भी आप ढूंढो, तो इतने सारे आप काउंट करो कितने हुए अभी, अगर हो गए तो फिर छोड़ दो। ओके ओके, सो ये हमारा हो गया। एंड देन नाउ मूव टू द सफिक्सेस। सी, आपको यहाँ करना, सफिक्सेस मीन्स व्हाट, दो होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्री मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। किसी भी वर्ड के अगर पहले कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। किसी वर्ड के अगर हम बाद में कुछ ऐड कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज सफिक्स। ठीक है, जैसे एजुकेट है, एग्जाम्पल्स देखो आप, एजुकेट, उसमें हमने TION ऐड कर दिया, इट हैज़ बिकम एजुकेशन। डिवाइड, उसमें हमने SION लगा दिया, इट हैज़ बिकम डिवीज़न। कुछ इसमें वर्ड्स जो है ना, सॉरी लेटर जो है ना, वो रिप्लेस भी होते हैं। ओके, कुछ को हमें रिमूव करना होता है, कुछ को हमें रिप्लेस भी करना होता है, तो आप इससे इस चीज़ को ध्यान दोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप वो समझ जाओगे, आपसे बन जाएगा वो। डाइट प्लस CIN, इट हैज़ बिकम डाइटिशियन। ओके, इन दिस वे आपको यहाँ खुद से बनाना है। राइट 3 वर्ड्स ईच विद द सफिक्सेस TION, SION एंड CIAN। यही तीनों प्रीफिक्स आपको यूज़ करनी है और आपको खुद से वर्ड्स बनाना है इन तीनों प्रीफिक्सेस से, सॉरी सफिक्सेस से, नॉट प्रीफिक्स, सफिक्सेस से। ये सफिक्स आपको यूज़ करना है और आपको यहाँ से खुद से यहाँ वर्ड्स बनाना है। तो TION से क्या कर सकते हो आप, इन्फॉर्म में अगर TION जोड़ते हो तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है ना, सफोकेशन हो सकता है। एंड देन फिर आप और क्या कर सकते हो, सोचो आप, इन्वेंशन हो सकता है, तो ये TION वाले हो गए, है ना। तो इस तरह से आप बना लोगे आप। ये हो गए। SION से आपके हो जाएंगे प्रोविज़न, कमीशन, रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, कमीशन, है ना। रिफ्लेक्शन तो आपके इसमें आ जाएंगे TION वाले में। ओके, CIN में क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन। तो आप बना लोगे ये। फाइन, सो डन। ये आपकी एक्टिविटीज़ जो आपके क्लासरूम में होंगी। सो दैट्स ऑल। ओके, so that's all for today and have a good day. Bye bye, take care.